Dear students, welcome you in my today's video. Last week I taught you about the capacitor lesson and the definition of a capacitor, capacitance of a capacitor and the dependence of a capacitance of a capacitor. And now today we will discuss about the capacity of an isolated spherical conductor and the capacitance of a parallel plate capacitor. So let's get started today's topic. It is very clear from the heading, the capacity of an isolated spherical conductor. Suppose that we have a isolated spherical conductor which center point is O and the radius of the isolated spherical conductor is A, and the charge is uniformly distributed at the outer surface of the spherical conductor. तो होता क्या है कि इस स्फेरिकल कंडक्टर को मैं एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में प्लेस कर देता हूं, रख देता हूं, ठीक है। इस स्फेरिकल कंडक्टर के क्लोज में या नियर में कोई भी अदर कंडक्टर हमने नहीं रखा हुआ है। अब जब हम इसे Q कूलाम चार्ज देते हैं तो यह चार्ज जो होता है इसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। और द पोटेंशियल विल बी इक्वल एट एवरी पॉइंट, मीन्स द इक्विपोटेंशियल। Now, due to of this equipotential, or can say the potential is equal at every point, the electric force lines comes out is perpendicular to the surface of the spherical conductor. कहने का मतलब यह है कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के कारण और पोटेंशियल इज इक्वल एट एवरी पॉइंट के कारण जो है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से इससे निकलेंगी वो परपेंडिकुलर होंगी किसकी? इस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस की, ठीक है। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is at the surface of the spherical conductor. पोटेंशियल हमें इसके सरफेस पर निकालना होगा, तो वो कितना होता है? पोटेंशियल की परिभाषा से, डेफिनेशन से हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Ka वोल्ट। क्लियर है? द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट is equal to 9 into 10 the power 9 Newton meter square per Coulomb square. It is clear that we will just discuss. We just discuss in previous section. मैं पिछले लेसन में भी इस चीज को बता चुका हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 into 10 the power 9 Newton meter square per Coulomb square. And the definition of a capacitor, capacitance of a capacitor, definition is C equals to Q upon V. हम जानते हैं capacitance of a capacitor की definition से C equal to Q upon V. Now putting the value of V from equation 1 to second, ये equation number second, ये equation number first. The value of V is putting from first into second. Then how much? C equals to Q upon 1/4 pi epsilon naught Q Ka. Then it is equal to 4 pi epsilon naught Ka. Q से Q cancel, ठीक है। If for air or vacuum, then the value of K equals to 1.
for air or vacuum. Then the above equation is this, C equal to 4 pi epsilon naught A. Means the capacity of an isolated spherical conductor is equal to or is directly proportional to the radius of the conductor. Now C equal to 4 pi epsilon naught Ka. ये हमारे पास जो इक्वेशन निकली थी कैपेसिटी ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की, ठीक हो गया। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि हमारे पास K इक्वल टू 1 हो एयर और वैक्यूम के लिए, तो फिर मैं इस कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर को किससे दिखा रहा हूं, C नॉट से दिखा देता हूं। वो हो जाएगा हमारे पास C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। अब डिवाइड these two equation, C upon C naught equals to 4 pi epsilon naught Ka upon 4 pi epsilon naught A. 4 pi epsilon naught से 4 pi epsilon naught कैंसिल, A से A कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा C upon C naught equals to K और C equals to K C naught. C is the capacity of an isolated capacitor and C naught is the capacity of a spherical conductor in air or vacuum. So finally, on the basis of this formula we can easily say that the ratio of the capacity of a spherical conductor and the capacity of a spherical conductor in air or vacuum is equal to its dielectric constant, or the capacity of a spherical conductor is equal to K times of capacity of a spherical conductor in air or vacuum. ये हमारे पास दो फॉर्मूला है, C अपॉन C नॉट इक्वल टू K और C इक्वल टू के सी नॉट। ये आपका जो है लिख देता हूं मैं। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना। C इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर एंड C नॉट इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इन एयर और वैक्यूम, ठीक है, क्लियर है। K आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये आगे चलकर भी ऑन द बेसिस ऑफ दिस द न्यूमेरिकल विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अब हम पढ़ेंगे द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालना है। इसके लिए हमने डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम हमने बना रखा है। ये हमारे पास दो इंसुलेटेड स्टैंड हैं और डाइलेक्ट्रिक स्टैंड कह सकते हैं हम इसे, इंसुलेटेड स्टैंड ही कहेंगे। ये एक्स और वाई प्लेट हैं, ठीक है। इस एक्स प्लेट को हमने जो वायर इससे कनेक्ट किया है वो एयर में हमने खुला छोड़ रखा है, ठीक है। और दूसरा जो वायर हमारे पास है उसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। इन एक्स और वाई प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी मीटर है, ठीक है। तो जैसे ही हम इस एक्स प्लेट को प्लस चार्ज देते हैं, प्लस क्यू कूलाम देते हैं, तो फिर इस वाई प्लेट के भीतर की ओर, इनसाइड की ओर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। किसके कारण? इंडक्शन के कारण। जैसे हमने एक्स प्लेट को प्लस चार्ज दिया तो इंडक्शन के कारण इस एक्स वाई प्लेट की भीतर की ओर, इनसाइड की ओर निगेटिव चार्ज और आउटसाइड की ओर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जो कि अर्थ से, ये वाला सिरा अर्थ से कनेक्टेड है, तो अर्थ से कनेक्ट होने पर ये प्लस चार्ज इससे क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो इस एक्स और वाई प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो जाएगा। पैरेलल प्लेट इसलिए कहा क्योंकि दोनों प्लेट पैरेलल हैं। इस
का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है और इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है। तो ऐसा करने से इसमें X प्लेट से Y प्लेट की ओर क्या होती है, करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, इस पूरे प्लेट का जो क्षेत्र वो एरिया है वो क्या है हमारे पास, A है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये X प्लेट है, Y प्लेट है, इसको हम प्लस चार्ज दे रहे हैं, तो ड्यू टू इंडक्शन के कारण इस Y प्लेट पर इनसाइड की ओर निगेटिव चार्ज, बाहर की ओर आउटसाइड की ओर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि अर्थ से कनेक्ट है, तो पॉजिटिव चार्ज इससे जो होगा न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसा करने से हमारे पास इसमें X प्लेट से Y प्लेट की ओर करंट फ्लो होने लगती है। इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d मीटर है। एक वायर को हमने एयर में ओपन कर रखा है और एक को हमने अर्थ से कनेक्ट कर रखा है। इस पैरेलल प्लेट इसलिए कहा है क्योंकि दोनों प्लेटें पैरेलल हैं, प्लस इंड्स है, ये निगेटिव इंड्स है। ठीक है, द करंट विल बी फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव and the area of this parallel plate capacitor is A and the dielectric constant of the parallel plate capacitor is K. So due to this whole process, the electric field will be equal in this parallel plate capacitor. As we know that the surface charge density is sigma, as we know that very clear from in the previous section. And if we have two parallel plate sheets, then the electric field intensity between these two parallel plate sheets is equal to sigma upon epsilon naught. ये हम प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि टू पैरेलल प्लेट हमारे पास, टू प्लेन पैरेलल शीट हों और उनके बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो फिर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो हम यदि हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, सेम टाइप का वही कंडीशन हो और उनके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हो, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? लेकिन हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन से जानते हैं सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। यही तो था प्रीवियस सेक्शन में हम डिस्कस ये तो कर चुके हैं। द charge uniformly distributed per unit area is called the surface charge density, and this is equation number first, this is equation number second. The value of sigma is putting from second into first, then we have sigma equals to Q upon A, Q upon K epsilon naught E. This is equation number third. Clear? And we also know that हम यह भी जानते हैं कि यदि हमारे पास किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही हो और उस कंडक्टर के टू इंड्स के बीच जो डिस्टेंस हो वो d मीटर हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उन प्लेटों के बीच और उसमें जो पोटेंशियल के बीच जो हमारा रिलेशन पाया जाता है वो होता है E इक्वल टू V अपॉन D। ये भी हम प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं। यहां से मैं V की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, क्या होगा, V इक्वल टू ED हो जाएगा। E की वैल्यू हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर थर्ड में, वो यहां रख देंगे, तो V इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू D हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम we know that from the definition of capacitance of a capacitor is equal to C equal to Q upon V, and the value of V in the previous
भाई हमारे पास V की वैल्यू क्या थी, ये थी Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो इस V की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, यहां पर रख देंगे। तो Q अपॉन ये हो जाएगा QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। तो C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये हमारे पास फैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई। ठीक है, कैसे आई वो एक बार मैं और समझा दूंगा आपको। अब मैं यदि इस K की वैल्यू 1 कहूं फॉर एयर एंड वैक्यूम, तो मैंने बताया था हमें क्या मिल जाएगी, C नॉट होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, विच इज आई जस्ट डिस्कस इन द प्रीवियस पार्ट। तो ये आपका हो जाएगा हमारे पास C अपॉन यही हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा K। तो C अपॉन C नॉट इक्वल टू K और C इक्वल टू के सी नॉट। अभी मैं प्रीवियस सेक्शन में इसे डिस्कशन कर चुका हूं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला C इक्वल टू के सी नॉट, वी कैन easily say that if we fill the dielectric substance in place of vacuum or air between the parallel plate capacitor, then the capacity of a parallel plate capacitor is increased by K times of the C naught. The value of K is 1 for air and vacuum, and it is infinitive for the metal. Note down this point. K equals to 1 for air and vacuum and is infinity for the material. So it is enough for today. We will discuss the new chapter in new days.